How are you? Are you fine? Yes. Because you are going to another cities for promotion, and I feel you are very tired. Am I right? Yes. Now you can feel like at home. How? This is your home, baby. Look at our home. We have hospital also. If you are too much tired, we have drips also. नरगिस के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए. जिनकी लहराती जुल्फों में ये हवाएं गुम हो जाती, जी. मिलाकर उनसे नजरें धड़कनें खो जाती हैं. कपिल और रितेश देशमुख, तुम दोनों कितने भी पापड़ बेल लो, लेकिन हीरोइन सबसे पहले क्रिकेटर से इंप्रेस हो जाती है. What he's saying is that you're looking very pretty, and he's like your brother, and a father figure to you. And he'll always bless you for whatever you do in life, especially banjo. That's so sweet. क्यों जलते हुए अरमानों के दिए बुझा रहे हो? अपने साथ साथ हमारी भी कश्ती डुबा रहे हो. क्या बात? खुद की रोटी तो तुम सेक नहीं सके दोस्त, अब चालाकी से मेरा भी पराठा जला रहे हो. वाह 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 पाजी. अरे वाह वाह. He's saying, not for this life, for next 7 lives, he's your brother. That's it, पाजी. आप जैसा भाई इस दुनिया की हर महिला को मिले. बाजी. ये हमेशा मुझे चिढ़ाते थे. मुझे आज रितेश, I love you, brother. Bro, I love you too. And I love you thrice. नरगिस को इससे पहले हमने हाउसफुल के लिए इनवाइट किया. फिर बहुत प्यार से मना कर दिया. उसके बाद में हमने अजहर के लिए इनवाइट किया. इन्होंने और भी ज्यादा प्यार से मना कर दिया. अभी ये बैंजो के लिए आई हैं, तो बैंजो के लिए क्या आप दिल से प्रमोशन करना चाहती हैं, और जस्ट यू फॉल इन लव विद मी? I mean, So he's saying you didn't come here for The other other promotions. promotions, Yeah. and But I've today just- decided to come. how sweet. Thank you Well- so much for coming, first of all. Yes. And I've never, it's my first time on your show. Yes. Come. वो इसलिए नहीं आई कि उसको हिंदी में ब्रदर और लवर का फर्क समझ में नहीं आता. फिर ब्रदर वाले पे आ जाओ. कुछ भी कर लो. Correct. What he is saying that you didn't come here. Okay, fine. We will करते रहेंगे हम लोग जो भी हमें करना है. You just relax and please have your seat. जोरदार तालियां बाजी. आइए बैठिए. अच्छा, नरगिस की जो मम्मी है बाजी, हाँ. वो स्लोवाकिया से है. कहां से? चेक और स्लोवाकिया. Right. Actually, Nurgi, can you please explain me what is the exact, Czechoslovakia? Well, it's no longer Czechoslovakia. It's Czech Republic. Czech Republic. It's the Czech Republic. I don't know because my all checks are being bounced by the bank, so. Czech Republic. So, इनकी मम्मी जो है वो चेकोस्लोवाकिया से हैं, पापा पाकिस्तान से हैं. अभी चेक रिपब्लिक हो गया. चलो. अच्छा, मुझे इतना पता था कि कॉकटेल का नशा खतरनाक होता है, लेकिन इतना नशीला था मेरे को नहीं पता था. बेटे, मेरे को ये आपकी बात बहुत ज्यादा पसंद आई. I just love. मुझे भी बहुत पसंद आई भाई. You don't need to understand what I'm saying. Just enjoy. If you feel like sleeping, you can go to sleep. Just feel like at home. अच्छा, नरगिस खुद भी कई देशों में रही हैं. यूएस, न्यूजीलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सिंगापुर, इंग्लैंड, कोस्टारिका, ग्रीस. आप इतनी सारी कंट्रीज में ट्रैवल करती हैं. You have been to so many Costa countries. Rica. हैं? Costa Rica. आपके लिए मंगवाऊं? अच्छा, ये कंट्री है. हाँ, राइट. Country. एक कॉफी भी आती है ऐसी सेम. So you have been to so many countries. So when you were traveling to different countries, have you ever thought you will get a visa to come on our show? I'm just kidding, but I'm very happy you are here. Thank you. Nargis, tell me one thing. Is it a fact or it's a rumor that you eat cold cream in your breakfast? What's cold cream? Cold cream.
cold cream like in our country north, so much fog, and just E. 5 nakhun printed on your skin, and then you put white cream and cold cream. That's cool. Cold cream को क्या कहते हैं? Moisturizer. But you asked if I eat it. Because you are so fair. I mean, Oh, she thinks you're so fair. इसको समझाते समझाते आज मेरी जान जाएगी देखना. You're fair. Thanks for the compliment, baby. You're welcome. अच्छा, रितेश और नरगिस का एक बड़ा ही रोमांटिक सीन्स भी काफी हैं इस फिल्म में. इन दोनों का आपस में प्यार हो जाता है. जी. रितेश, कभी ऐसा हुआ कि आप कोई रोमांटिक सीन करने जा रहे हो, जी. बीच में जेनेलिया का फोन आया हो कि राहिल के डायपर लेते आना, तो उस समय आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं? आपके मैं ये बताना चाहूंगा बताओ. कि एक अनसेड रूल है इंडस्ट्री में. हाँ. जो भी शादीशुदा एक्टर्स हैं, हाँ. जब रोमांटिक सीन्स करते हैं, हाँ. फोन बंद करके. सिर्फ एक्टर नहीं, मेरा फोन 15 साल से बंद है. तो आपने ये बात बोल तो दी. हाँ. अब आपका जब घर जाके 3G टूटेगा ना, इनका नेटवर्क नहीं आने वाला देखना. आपने बोल तो दिया ये कैमरा पे. Being a younger brother, I advise you. सोच समझ के बोला करें. रितेश इस फिल्म में एक मराठी कैरेक्टर निभा रहे हैं. रितेश खुद महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं. नरगिस जो है वो शी इज इंटरनेशनल गर्ल, ये पूरी दुनिया की हैं. जब इन्होंने पहली बार टपोरी वर्ड सुना ना, इनको लगा कोई खाने की चीज है. नरगिस, अगर आप कहीं एकदम देसी लड़के के साथ डेट पे जाएं, इफ यू विल एवर गो टू ऑन अ डेट विद अ वेरी देसी बॉय लाइक कपिल शर्मा. Like who? कपिल तो शर्मा. मैं सोच रहा हूँ वहां क्या होगा. Are you asking a date? इन फ्रंट ऑफ ऑल. आई मीन इंग्लिश के मामले में चुप हो जाता, अदरवाइज तो कोई इतनी वैसी प्रॉब्लम नहीं है. या आई मीन आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट इफ यू गो ऑन अ डेट विद अ वेरी मच देसी गाय. Actually, I wish that maybe I met you a few years ago. Then my Hindi would be better and your English would be better. I love you. अब आप जानते हैं I love you too much, but Nargis, well done, You girl. killed it. हाँ. You love What you I love did. her. I love you 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. You love till 10. I will start from 11. हाजी, ये जो ऑड कपल है, हाँ. ये जो इनका जो ये डेट सिनेरियो है, हाँ. वो मुझे लगता है हमको यहीं पर देखना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए. मैं तो बिल्कुल. Are you sure? Of course. Come, baby. I will take you to some romantic place. Can you please give me some mood lighting? Thank you. Please. इतना मजेदार म्यूजिक. Wow, this is very romantic. This is not romantic. We didn't pay our electricity bill. They cut. I want to say some beautiful poetry for your beautiful face. डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक. कुछ ऐसा करो कि हमारा सरनेम हो जाए एक. I mean, I want to become My Mr. cake? Kapil Fakri. एक क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? कपिल शर्मा शो चल रहा है. क्या चल रहा है? ये चिपका चिपकी नहीं, बिल्कुल नहीं. कौन सी चिपका चिपकी भाई, हमने तो दूर दूर बैठे बातें कर रहे हैं यार. हाँ, 20 साल का एक्सपीरियंस है,
फिजिकली दूर है लेकिन मेंटली तो ऑलरेडी चिपक चुका है इधर। हाँ, ये सब ऐसा नहीं चलेगा। लगता है तेरा एडवांस में चालान काटना पड़ेगा पावती की तरह। एडवांस में चालान कौन काटता है यार? तू एडवांस में इनकम टैक्स भरता है ना। भाई ये मेरी डेट मरवा रहे हो कि मेरी रेड मरवा रहे हो? मुझे करनी नहीं है ये डेट। कैंडल ऑफ। जोरदार तालियां नरगिस के लिए एंड जोरदार नॉट तालियां फॉर रितेश। कम कम नरगिस। टार्जन इतना डरा रही है, मेरे को सीधा मार ही देना। डरा तो मत, मेरे को मेरी जान निकल जानी है यार। डॉक्टर साहब एक मिनट डॉक्टर साहब संतोष, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ पे ना कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद ले लो तुम, ले लो। देख नहीं रहा, ये मेरा मर्डर करने की कोशिश कर रही है। वो देख, रितेश देशमुख उधर बैठे हैं, देख 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 देख। वो रितेश देशमुख बैठे हैं उधर, देख। नमस्कार रितेश देशमुख जी, नरगिस फकरी जी नमस्ते। हम देखे नहीं आपको, पता नहीं था आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सचमुच में रितेश देशमुख, आपका मुख इस देश में सबसे रॉकिंग है। और तेरा मुंह सबसे ज्यादा थूकिंग है, तेरे मुंह पे जितना मर्जी थूक लो। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, लेट मी इंट्रोड्यूस। आइए बैठिए, बैठ जाइए। I'm Dr. Mashur Yes. Gulati. Yes, doctor, Hi, nice meeting you. Nurgis. Dr. Mashur Gulati, BMC. BMC? BMC मतलब? BMC मतलब Bachelor of Medical Science. साइंस तो ऐसे होता है। देखो देखो कौन आदमी BMC के स्पेलिंग बता रहा है मेरे को? हैं? तो ठीक है, आप क्या कीजिए, आप इनसे बातें मत कीजिए। आज इनसे हम बात करेंगे, वो भी अपने हाथ से और लात से। संतोष तूने मार क्यों रही है? संतोष क्यों मार रही है? अरे हम बता रहे हैं। देखिए, हम अपना वजन कम कराना, हम रितेश जी बता रहे हैं जी। क्या हम अपना वजन कम कराने इनके पास गए। Okay. ये क्या करते हैं सोचिए, जी। ये वैक्यूम क्लीनर लेके हमारे मुंह पर ऐसे चिपका दिए। अरे बड़ी मुश्किल से वैक्यूम क्लीनर को अपने से यूं अलग किए हैं, वरना अंदर से लंग, किडनी सब कुछ ऐसा सक करके हमारा सब बाहर निकलने वाला था। This is a medical procedure. जैसे क्या होता है, ये मेरे पास आई सिद्धू साहब, मेरे को कहती मेरे को 2 मिनट में 35 किलो वजन लूज करना है। तो मैंने कहा 2 तरीका, या तो लिपोसक्शन करा लो या फिर अपनी दाईं जांग कटवा लो। तो ये कहती है मुझे लिपोसक्शन कराना है। मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया, इसके मुंह पे लगा के ऐसे सक्शन कर दिया सारा लिप का, तो लिपोसक्शन हो गया। और दिस इज मेडिकल साइंस, आई वाज जस्ट फॉलोइंग द प्रोसीजर। देखिए, आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, हटिए। वैसे नरगिस जी, आप जैसे आपके लिप्स बहुत फेमस है ना, वैसे ही हमारे हिप्स भी बहुत फेमस हैं। डांसिंग के लिए हम डांस करते हैं ना, तो अगर आप इजाजत दें तो आपके साथ भी हो जाए 2-2 हाथ। 2-2 हाथ डांस कर रही है, कुश्ती कर रही है? नहीं करती तो डांस ही, लगता कुश्ती है। बस म्यूजिक खत्म हो गया, म्यूजिक खत्म हो गया, म्यूजिक खत्म हो गया। हट क्यों नहीं रहे आप? अब मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती करवाते हैं आप। ऐसे कौन म्यूजिक बंद कराता है भाई? अब मैं चलते हैं क्या, रिंकू भौजी का उठने का टाइम हो गया है, उठते ही उनके लिए चिल्लम तैयार करना होता है, तो हम करके आते हैं। चलिए ना, नमस्ते, हम चलते हैं। चलो ये तो चली गई। He is in. But Ritesh, I must tell you, I am a doctor also, और as a doctor मेरे बहुत फर्ज बनते हैं, बहुत ड्यूटीज हैं। जी। आप डॉक्टर लगते हैं कहीं से भी। देख ध्यान से देखो, ऐसा ना चुड़ैल का एक्सीडेंट हुआ है। चक्कर ध्यान से देखना ही क्यों, फिर मत देखो ना ध्यान से। मैं ताजमहल हूँ जो मेरे को ध्यान से देख रहे हो तुम, हैं? So
एज ए डॉक्टर मेरे बड़े फर्ज बनते हैं एंड आई वांट टू डू योर टेस्ट। सर 2 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुके मेरे। अब आप आते ही इतनी बार, हम क्या करें? हमें तो अपने फर्ज निभाने हैं ना, हमारे दर पे आए हैं तो टेस्ट तो करा के जी। जाएंगे। बट या रितेश, बिफोर दैट आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। मिस्टर रितेश देशमुख गणपति जी के दौरान इस बार इन्होंने इको फ्रेंडली गणपति लाए, जोरदार तालियां इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू, ये थैंक यू। श्रद्धा के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा आपने, जी। इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। Thank सो आई वांट टू डू योर टेस्ट। जी। आई वांट टू सी कि आपने गणपति जी तो इको फ्रेंडली लाए, आप इको फ्रेंडली हैं कि नहीं? ओके, उसके लिए मैं आपको कुछ कहूंगा, आपको करना होगा। ओके। आप बोलिए हेलो। हेलो, हेलो। हेलो। नहीं, आप इको फ्रेंडली नहीं है। मैं दिखाता हूँ आपको कि जी। मैं कितना इको फ्रेंडली हूँ। जी। हेलो 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 बादशाह। बादशाह 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 कालिया। कालिया 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 देखा? देखा 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 हो गया। हो गया हो गया हो गया खत्म हो गया। खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। यार बस कर। यार बस कर यार बस कर यार बस कर एक्सक्यूज मी। यार मैं किसको मुंह दिखाऊं यार? 1 मिनट, मुझे तभी शक हो गया था जब इन्होंने कहा ना बादशाह, कहता बादशाह बादशाह बादशाह। ये सब करवा रहे हैं आप अपने मरीजों से? ये इको फ्रेंडली, ये आपका इको फ्रेंडली? मुझे भी कपिल शर्मा लग रहा था, मैंने इतनी मार खाई है, मैं बदला किससे लूं? तू तो मेरा हॉस्पिटल बंद कराएगा। चल अंदर, चल यहाँ से, अब मिलते हैं फिल्म बैंजो में रितेश और नरगिस के एक और साथी कलाकार से, जो कि एक बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर तो है ही, अब एज एन एक्टर भी अपना सिक्का जमा रहे हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर धर्मेश। पहली बार मैंने देखा है धर्मेश को। धर्मेश की जब भी किसी टीवी शो में एंट्री होती है तो ये हमेशा या तो उल्टा लटक के आ रहे हैं या कहीं से, उनकी बेसिकली कोरियोग्राफर हैं, पर आज पहली बार सीधा चल के आए। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू धर्मेश के बारे में सब जानते हैं कि इनका सबसे पहला जो बड़ा ब्रेक था वो सोनी टीवी के ऊपर ही था। इन्होंने बहुत ही फेमस शो बूगी वूगी जो था वो इन्होंने अपने नाम किया था, उसके विनर रहे हैं। यस सर धर्मेश, जब आप बूगी वूगी के विनर बने तब आपके मन में आया था एक बार आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? मैंने कपिल देखा कि जितने लोग बाकी के शो में क्या होता है ना कि शो चलता है, बाकी के कुछ क्रूज मेंबर्स होते हैं या जो भी होते हैं वो आधे बाहर रहते हैं, जी। घूमते रहते हैं कि चलो शो चालू है। बट यहाँ पहली बार देखा कि बाहर कोई नहीं होता है, सब क्रू वाले अंदर होते हैं, मॉनिटर में देख के एंजॉय करते रहते हैं। थैंक यू धर्मेश। प्लीज हैव सीट धर्मेश। आर यू कंफर्टेबल ओवर देयर और यू कैन सिट हियर? धर्मेश पाजी इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर आपकी लगन सच्ची है, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत जो आप अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव करने से आपको रोक नहीं सकती। एक ऐसा लड़का जिसका वडोदरा में एक मिसल पाव का स्टॉल था और आज डांस की दुनिया में, एक्टर्स में एक अपने आप में मिसाल है। धर्मेश, हैट्स ऑफ टू यू ब्रदर। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। धर्मेश के लिए जोरदार तालियां यार। धर्मेश ने इससे पहले 2 फिल्में की हैं, ABCD और ABCD 2, जिसमें वो डांस बेस्ड फिल्में थी और धर्मेश जो है उसमें एक ग्रुप डांस का हिस्सा थे। धर्मेश, इस बार आप एज ए डांसर नहीं एक्ट कर रहे फिल्म में, एज एन एक्टर आप परफॉर्म कर रहे हैं। आपको इसमें मुश्किल लगा कुछ? मेरे लिए टफ था क्योंकि इसमें डांस का कुछ भी एक स्टेप भी नहीं है, मुझे Okay. एक वो स्टेप भी नहीं करना, सिर्फ एक्टिंग के ऊपर ही खेलना है। सो बट एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है, वो है रितेश भाई। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनकी मैंने एक बार मदद की थी तो मुझे पता चला कि 2 गाने इनके साथ हैं ओके। जिसमें हमको नाचना है। तो मैंने कहा कि इसमें एक भी स्टेप बराबर मत करो, क्योंकि क्या है कैरेक्टर में है। तो ये आप उनकी मदद कर रहे थे कि अपनी मदद कर रहे थे आप? नहीं, मैं इनको बोला कि
अपने कैरेक्टर को मत छोड़, ऐसे कोई कुछ भी बोले, ऐसे यू आर अ ड्रमर, यू नॉट अ डांसर। ड्रमर तो बीट्स ड्रम के पकड़, डांसिंग के मत पकड़। और मैंने ऐसा फिक्स कर लिया पाजी कि 2 गाने देखो मैं इससे बेटर नाच रहा हूं। मुझे 2-3 SMS भी है, क्या एनर्जी है, धर्मेश से अच्छा लग रहा है तू। और जब पिक्चर रिलीज होगी तो बोलेंगे धर्मेश क्या काम किया, रितेश से बेटर काम किया तूने। फिल्म की शूटिंग के दौरान हमने सुना कि नरगिस जो हैं वो धर्मेश को इंग्लिश सिखाती थी और धर्मेश इनको हिंदी सिखाते थे। अच्छा ये पैंतरे हैं लड़की को पटाने वाले, ये बड़े टीनेजर वाले होते हैं। आपको कोई नया आइडिया नहीं आया दिमाग में? नहीं, आपको पता है मुझे इंग्लिश नहीं आती आपके जैसी, बट आप तो अभी बहुत अच्छा पहले कपिल इनकी इंग्लिश भी थोड़ी ऐसी ही थी कुछ, बट अभी आप बहुत अच्छा। No, yeah, that was I was just did for comedy, but I can't tell you how much I good in English. I don't speak, so that English department can't raid on me. नहीं, बट मुझे पता है कि 3 महीना मुझे शूट करना है। अभी रितेश भाई के साथ तो मराठी में बोल लूँगा या हिंदी में बोल लूँगा, इनके साथ पोपट ना हो जाए, क्योंकि कभी सडनली इतना फास्ट बोल जाते हैं ना कि धर्मेश, नरगिस, रितेश पाजी, आपके यहाँ पे फैंस हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। आप जो भी पूछना चाहते हैं फटाफट अपने सवाल जो हैं पूछ सकते हैं। जी, सबसे पहले कौन आ रहे हैं? हेलो एवरीवन। हेलो रितेश सर, जी मेरा सर। सवाल आपसे। जी सर एक बहुत पारिवारिक सवाल है। जी आप इतने बड़े एक्टर हो, आपकी वाइफ भी बड़ी एक्टर है और आप 2 बच्चों के बाप हो। अभी रात में जब बच्चे उठते हैं, सुसु करते हैं या उनको भूख लगती है, तो उनको कौन मैनेज करता है? मैं जनरली अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से पूछ रहा हूँ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे। आपका सवाल सही है। एक बच्चा मेरा अभी 2 साल का होगा, दूसरा 3 महीने का है। और जिनिलिया वो शी टेक्स केयर ऑफ बोथ द बेबीज, एक्चुअली ऑल द 3 बेबीज, मी इन्वॉल्व। ओके, डायपर वाइपर फिलहाल वो चेंज करती है, लेकिन जब भी मुझे वक्त मिलता है, जैसे आज या पिछले 2 दिन से सुबह मैं उठता हूँ, फिर अपने बेटे को उठाता हूँ, उसको नहलाता हूँ। उसको ब्रश बिल्कुल करना पसंद नहीं है, तो मुझे गाने गाने पड़ते हैं, तो मैं बोलता हूँ आई बाबा, तो वो ब्रश करता हूँ, तो फिर वो मुंह बंद कर लेता है, तो फिर मैं बोलता हूँ उसको कि सिंह का कर, तो सिंह, तो बोलता है तो ब्रश डाल देता। तो वो हो गया। फिर बोलता हूँ हत्ती क्या कर, तो हत्ती, बोलता है फिर से ब्रश। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैंने उनसे कहा कि बिकॉज द बेबीज आर टू स्मॉल, तब तक वो ख्याल रखती है। बट आई थिंक इट्स जस्ट अमेजिंग। एक और मैं किस्सा आपको सुनाता हूँ। पहली बार जब मैं डायपर चेंज कर रहा था, तो उसका एक सिस्टम होता है कि एक कटोरी थी जिसमें साफ पानी होता है, एक कटोरी जिसमें कॉटन होता है, और बच्चा सामने, तो डायपर खुला रखने का, वो कटोरी में से कॉटन लेने का, पानी में डुबोने का, साफ करने का, पैर साफ करने का, डस्टबिन में डालने का, फिर दूसरा। तो मैंने क्या किया, कॉटन लिया, पानी में डुबोया, साफ किया, फिर से पानी में डाल दिया। फिर उतने में उसने सुसु कर दी। अब मैं बौखला गया, तो मुझे पता नहीं, तो मैं कैच कर रहा हूँ कि इसका क्या करूँ मैं, ये क्या करूँ। तो सॉरी, ये मेरे कुछ घरेलू, आई होप दे हेल्प यू। थैंक यू सर, शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद आपका। जी, और कोई मेरे दोस्त? जी मेरा सवाल नरगिस जी से है। जी, वो बाय द वे नरगिस जी शाहरुख जी और काजल जी की बहुत बड़ी फैन है। अच्छा। कपिल जी, आप भी शाहरुख जी के बहुत बड़े फैन हैं। जी बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि नरगिस जी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा एक सेट मेरे सामने क्रिएट करे। स्टेप क्रिएट करें? सेट क्रिएट करे, जिसमें अमरीश पुरी जी काजल जी से बोलते हैं जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जी हाँ, जिसमें आप बनोगे शाहरुख खान। कौन? आप कपिल जी। मैं? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? नरगिस जी बने, नरगिस जी बनेगी काजल मैम जी, और रितेश जी आप बनोगे अमरीश पुरी जी। प्लीज मैम।
What is he asking me? So what he wants to do is recreate an iconic scene where I'm going to play your father, Will be my father? your father. He's going to be your lover. My lover? Yeah. And it's an iconic film, DDLJ. So you want to marry him? I want to marry you? I'm holding your hand and I'm going to tell you at the end of it. You're going to say, please leave me, Dad. Please leave me, Dad. I'm going to marry him. I'm saying, no, 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 no. And at the end, I'll say, okay, fine, go and live your life. Ja, Simran, ja. जी ले अपनी जिंदगी जी ले अपनी जिंदगी. With him? Yeah. You have to. ब्रिलियंट। देखो जी, सारे शो पे वो बहुत कम बोली, लेकिन जब बोली ना उसने कुंडा खोला। Okay, we okay? गुड यार। Yeah, we okay? Don't be sad that you are getting a husband like me. Be happy you are getting a father like him. Young father. I'm a very young father. देखो, कर्म वापस आता है। तुमने हमें भाई बोला ना, तुम बाप बन गए बेटा। मुझे क्या पता था कि मैंने सिद्धू जी को नरगिस का भाई बना दिया, इसने मुझे अपना बाप बना दिया, तो आज मैं सिद्धू जी का भी बाप बन गया। चलिए रिश्ते बड़ी जल्दी चेंज हो गए। Okay, you know that Dharmesh can be a train. He can dance like a हाँ train. धर्मेश चलो Dharmesh, train. कुछ भी बन जाएगा ये पता। चलो ट्रेन Okay, train, slow train. स्लो ट्रेन। हाँ तो मैं ट्रेन के पीछे हूँ। ठीक है चलो रेडी चलो रेडी Papa, Papa, please, I want to marry him. Hey! I want to marry. सिमरन जल्दी आओ, ट्रेन निकल रही है। Okay, सिमरन Papa, please. you can go. Listen, Simran, I want to tell you one thing. Train, you live. सिमरन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या क्या कहो ना। मुझसे तुम्हारे साथ बात नहीं होगी। मेरी इंग्लिश कमजोर है, अपने बाप के पास वापस जाओ। Easy. I don't know English. Go back to your father. ट्रेन खड़े खड़े देख अच्छा, ट्रेन आदमी से भी स्लो चल रही, मैं भाग रहा हूँ और धर्मेश धीरे-धीरे। थैंक यू नरगिस जी। आपका यार नाम बताया नहीं आपने। जसवंत है नाम मेरा। जसवंत। चलो शुक्रिया ब्रदर। थैंक यू। जी और को मेरे दोस्त जी। ओह, अरे वाह। बाजीराव! सर माझं नाव आहे मंगेश. मंगेश. हा नमस्कार. मी राहायला सोलापूरहून आलो इकडं. सोलापूर आलाय? सोलापूरहून का तुमचं एक बघायचं होतं आम्हाला का टीव्ही मध्ये तुम्हाला बघितलं होतं. यार मंगेश एक बात बताओ, मुझे इतनी प्यारी लगती है ना मराठी लैंग्वेज, पर अगर आपने दोनों में आपस में बात करनी, बाहर ही मिल लेते फिर हमें भी तो बताओ क्या बातें हो रही हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप सोलापुर से आए हो, टीवी में देखा है मुझे और आपको टीव्ही में देखा है तुम्हारे को जी. फिर एक तुम्ही जे वाजवतात ना बैंजो बैंजो. हाँ. तुम्हारी एक कला तुम्हारे दिखाओ एक कला माझी पण एक कला मैं तुम्हारे दिखाता हूँ. अरे वाह, ओके. दिखाओ दिखाओ। चलो क्या चलो बात है। जाओ। आइए मंगेश, आइए मंच पे आइए। क्या बात है मंगेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर यार। सुपर्ब। थँक्यू. आभारी आहे तुम्ही इथं आलात. एवढं छान वाजवलं तुम्ही. मुलगी शिकली प्रगति झाली। शुक्रिया मंगेश, थैंक यू सो मच। मंगेश जी 2 मिनट दोबारा मंच पे आइए। आप हमें बड़े प्यारे लगे, बहुत अच्छे कलाकार हैं। आपके लिए हमारे पास एक खूबसूरत सा गिफ्ट है। नरगिस, हमारे शो में एक रवायत है, हम जो भी हमारे शो में आते हैं, जो हमें बहुत पसंद आते हैं, थैंक यू. प्यारा सा गिफ्ट देते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मोबाइल, आई वांट यू टू गिव हिम। थैंक यू मंगेश जी, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। चलिए तो सर एक सेल्फी हो जाए जाने से पहले। कम रितेश। थैंक यू। पाजी यहाँ पर आया, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी मस्ती की। जाने से पहले नरगिस आपसे कुछ कहना चाहती है।
सिद्धू भैया। अब मैं क्या लेकिन अब मैं क्या कहूं? नहीं बाजी डबल नहीं अब मैं भी तो कुछ गा दूं। नहीं सर, दिल टोटे टोटे हो गया। नहीं सर, उसके लिए मेरे पास एक इलाज है। हाँ। हमारी फिल्म बैंजो का एक अमेजिंग रोमांटिक नंबर अच्छा हृदय ने गाया है। अच्छा। वो यहाँ पर है आज, मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको इस रोमांटिक नंबर पर आप और नरगिस डांस करें। भैया देखो भैया, भाई बहन के रिश्ते के ऊपर कलंक लग जाएगा। भाई बहन तो मैंने तोड़ दिए सारे रिश्ते। ना हम ही टूट गया, कमाल कर दिया उसने, कह दिया भैया। फिर वो अकेला बोले ना सिद्धू ऐसे करके, फिर मैं आऊंगा। ओके Okay, Nargis, you have to say, Sidhu, let's dance. लेट्स गो। Sidhu, let's dance. ओहो, चलिए। महाराज चप्पू शर्मा की जय हो। तुम भी जय करो। इतना एटीट्यूड, हम तुम्हें गंजी कर देंगे। ठोकापुर शॉपिंग मॉल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हर सामान पे 80% की छूट है। ओह। लेकिन यह शर्त है, खरीदा हुआ सामान यहीं पे रखना पड़ेगा। इंग्लैंड की प्रिंसेस यहाँ पे शादी की शॉपिंग करने आ रही हैं। ओहो। और अगर किसी ने मेरा प्लान चौपट किया, उनको बताया कि मैं नकली हूं, तो ये तलवार देख रहे हैं आप, ये खानदानी तलवार है। मेरे दादा परदादा सब इसी से मरे हैं। चप्पू! चप्पू, ये क्या मजाक है? दासी होकर राजा का नाम लेती हो? ये लो कोड़े, खुद को 50 कोड़े लगाओ फटाफट। तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। तो ठीक है, 20 कोड़े ज्यादा लगा लो, लेकिन मैं एक भी कोड़ा ज्यादा नहीं दूंगा। फटाफट लगाओ। ये क्या दासी, क्या कोड़े? देखो तुम मुझे परेशान मत करो, तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। ओ LOL लोल। ये क्या LOL लॉल लगा के रखा है? एक तो तुम्हारे कहने पे ये सब पहना हुआ है मैंने। मेरे कहने पर नहीं पहना, झूठ मत बोलो, मेरे ब्लैकमेल करने पे पहना है। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया, मैं कप्पू भैया को जाकर सबसे बता दूंगा फिर। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपने भैया को कुछ नहीं बताओ। एक तो मुझे पता ही नहीं कि बताएगा क्या। हाँ। और लेकिन मैं क्वीन बनूंगी सिर्फ। क्वीन? वो तो कंगना कब की बन गई। तुम क्रिश बन जाओ। एक काम करो, तुम मोहनजोदारो बन जाओ। मुझे कुछ नहीं बनना, मैं जा रही हूँ। ए, कप्पू भैया मैं सब बताने आ रहा हूँ। अरे रुक जाओ, मैं तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। ठीक है, पकड़ो इसको। तक लिया। ए, रुको, तलवार देके जाओ इधर। जाओ, जाके शाही मेहमान के आने का स्वागत किया जाए। चलो 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 चलो। इंग्लैंड की महारानी का हमारे दरबार में स्वागत है। एक्सक्यूज मी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नो 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 नो, एक्सक्यूज मी, आपको शायद पता नहीं, आप रॉयल वेलकम कर रहे थे, आपको मुझे हाथ पे किस करना था। नहीं, किस तो हम शादी वगैरह के बाद ही करते हैं। मेरी शादी तय हो चुकी है। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमारी करेंसी वहां नहीं चलती, वहां की शादी इधर नहीं चलती। हमारे को नो 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 नो, आपको गलतफहमी हुई है, मैं किसी और से ऑलरेडी प्यार करती हूँ। देखिए, प्यार तो मैं भी दीपिका पादुकोण से करता हूँ, लेकिन मेरा अफेयर तो जैकलीन के साथ चल रहा है ना। So just chill, just chill। कहीं पे निगाहें, कहीं फोन पे पे तो निशाना। बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि हम आपका स्वागत ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। कब से आई हूँ, चाय भी नहीं पूछी। हम क्षमा चाहते हैं। अभी चाय पूछ लेते हैं, आप चाय लाई? मेहमानों को चाय ऑफर की जाती है। आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, कहीं आप इटली से तो नहीं है? जी हूँ, पर इटली में हिंदी कौन बोलता है? सारे बोलते हैं। हम लोग पूरी फैमिली के साथ गए थे, हमने आपस में हिंदी में बात की। हम तो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है। भारत माता की जय। आप खड़ी क्यों हैं, बैठती क्यों नहीं? कहाँ बैठूं? एक मिनट इधर आइए। हमारी शाही गोद आपका स्वागत कर रही है। मैं लंदन की महारानी हूँ, मैं एक पराये मर्द की गोद में बैठूंगी? जब गोद में ही बैठ गए, फिर वो पराया कहाँ रह जाता है?
मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। क्षमा चाहते हैं। या दासी। हेलो योर हाइनेस। ये कौन है? ये महारानी। दासी। महारानी है या दासी है? ये दासी है, लेकिन हम प्यार इनको महारानी वाला ही देते हैं। महाराज जरा अपनी जुबान पे लगाम दें। आप राजा से जबान लड़ा रही है। आपको आज ही महारानी के पद से बर्खास्त किया जाता है। चलो, आज से आप इस महल की दासी है। लो गमछा, चलो महल पे कपड़ा मारो। चलो 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 चलो। जाइए, महारानी के लिए नाश्ते का प्रबंध करें। हम क्यों बनाए? खुद को कोड़े मारने का इंतजाम करें। कप्पू भैया को बताने जा रहे हैं हम सब कुछ। महाराज महाराज, हमारे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि शाही रसोई में खाना खत्म हो चुका है। तो घोड़ों के अस्तबल में से चारा लेके आ जाए। घोड़ों के अस्तबल से? क्यों, वो नहीं हमारे चने खाते? एक दिन हम उनका चारा नहीं खा सकते? एक्सक्यूज मी, आप मुझे घोड़ों का खाना खिलाएंगे? मेरे यहाँ पे 8 तरह के बिस्किट, 10 तरह के बर्गर, 15 तरह के सैंडविच, 20 तरह के केक और 15 तरह के पिज्जा नाश्ते में बनते हैं। हमारे यहाँ की भैंसी भी इससे कम खाना खाती है। एक्सक्यूज मी, आपकी क्या प्रॉब्लम है? भैंसों के डायपर इनको बदलने पड़ते हैं ना, चिढ़ती हैं ये। महाराज, मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, आप इतनी थकी हुई लग रही है। मुझे लगता है आपको हमारे शाही तालाब में स्नान करना चाहिए। ओह माय गॉड, वाओ, यहाँ पे शाही तालाब है। जी बिल्कुल। Oh, दासी, okay. जाइए और तालाब में सारी भैंसों को बाहर निकलने का हुक्म दीजिए। जाइए। मैं आपकी भैंसों के साथ क्यों नहाऊंगी? ऐसे कैसे नहीं नहाएंगे? हमने सारी प्रजा से 4-4 अशरफियां लेके वादा किया है कि महारानी इधर नहाएंगी। जाइए, जाके क्वीन के लिए शाही मुर्गा पकाया जाए। मुर्गे भी खत्म हो चुके हैं। तो कुकर में आलू डालो, उसका ढक्कन बंद करो, खुद करो। जाओ, सारा दिन कुकड़ू कुकड़ू करती रहती हो इधर। महाराज, फट पक लिया। हम आपको याद दिला दें, हम आपको याद दिला दें कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हम अपनी शादी की शॉपिंग करने। एक्चुअली आई लव इंडियन कल्चर, यू नो। इवन आई लव। प्लीज आप एक काम करिए, मुझे कुछ ढंग का दिखाइए मेरी शादी के लिए। आइए, लेट्स गो। यहाँ आइए। ये देखिए, ये देखिए, मुगलों के जमाने की लिपस्टिक। ओह वाह, तब लिपस्टिक्स भी होती थी? क्या बात कर रही है? बहुत अच्छी लिपस्टिक है। आपको पता है 6-6 महीने तक चलती थी ये। Really long lasting, what quality? क्वालिटी ठीक ठाक है। मुगल जंग पे जाते थे 6-6 क्या? महीने, तो पीछे लिपस्टिक कौन खराब करे फिर? ओके ओके, आप मुझे इत्र दिखाइए। मैंने यहाँ के इत्र के बारे में बहुत कुछ इत्र सुना है। बहुत, हमारे पास मुगलों Yeah? के जमाने के इत्र हैं। ये देखिए, Damn nice. स्प्रे करके देखिए आप। इससे प्याज की बदबू आ रही है। अरे मैंने बताया ना आपको, मुगल युद्ध पे जाते थे वो जानबूझ के बीवियों को ये इत्र लगा के जाते थे ताकि उनका कोई मित्र ना आए। ऐसे आप ये मुझसे दूर करिए और मुझे मोती का हार दिखाइए। मोती का हार देखना क्या? आपको? यार इतनी डिमांड बढ़ी है। ये लो मोती का हार। ये कुत्ते का पट्टा है। हाँ, तो ये हार हमारे मोती का है। आप चाहते हैं कि मैं इंग्लैंड की महारानी कुत्ते का पट्टा पहनूं? ये आपके लिए नहीं है, ये आपके होने वाले कुत्ते, आपके पति के लिए। कौन सी ब्रीड वैसे ले रही हैं आप? चलिए आप मुझे कुछ कपड़े दिखाइए शादी के। कपड़े? या बिल्कुल, शादी के कपड़े। यस, अभी शादी के दिखाता हूं। कपड़े। ये लीजिए शादी के कपड़े। ये लीजिए कुर्ता, ये लीजिए धोती। ये क्या है? ये पंडित यही कपड़े पहनते शादी में। मैं पंडित के लिए नहीं, अपने लिए कपड़े मांग रही हूँ। अपने कपड़े तो आपके पास होंगे ना? मैं दुल्हन के कपड़े मांग रही हूँ। दुल्हन के कपड़े मिल जाएंगे। कल हमारे यहाँ पे शादी है, दुल्हन से छीन के दूंगा आपको। अरे यार, मुझे दुल्हन के नए कपड़े चाहिए। दुल्हन के नए कपड़े चाहिए? क्या? ओके। दासी, अब क्या है? अब क्या हुआ? ये कोई तरीका है? शाही दासी ऐसे बात करती है? महाराज की जय हो, हुक्म फरमाएं। फटाफट इनको ये कपड़े उतार के दिखाओ। ये काम आप खुद भी कर सकते थे। शट अप लिया, फटाफट किया और गेट आउट लिया। चलिए, ये लीजिए। ये क्या है? ये नाइटी है। हाँ तो? हाँ तो क्या? मैं नाइटी पहन के शादी में बैठूंगी तो लोग क्या सोचेंगे? अरे मैडम देखिए, अब आप इतने सारे मेहमान आएंगे, उनको शादी के बाद सी ऑफ करने जाएंगी, फिर वापस आके थक जाता, फिर चेंज करने का मन नहीं करता, तो इसी में ये शादी में यही पहनो आप। लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ये पहन के बैठूंगी तो? अगर आप ये भी नहीं पहनेंगे तो लोग फिर और ज्यादा गंदा सोचेंगे। हाँ बोलो, महाराज की जय हो, हुक्म फरमाएं। नहीं कुछ नहीं, मैं ताली का नेटवर्क